We are going to discuss the Descartes method of solving the biquadratic equation. Method is, suppose the given equation is x to the power 4 plus qx square plus rx plus s equal to 0. Note that second term is missing here. We want to split it into the two quadratic factors x square plus lx plus m and x square minus lx plus n. So we can write x to the power 4 plus qx square plus rx plus s equal to x square plus lx plus m into x square minus lx plus n. Now comparing the coefficient of like powers of x in 2, we get m plus n minus l square equal to q, means m plus n equal to l square plus q, and ln minus lm equal to r, means coefficient of x. This implies n minus m is equal to r by l, and constant term mn equal to s. Now we want to eliminate m and n, so we use the identity n plus m whole square minus n minus m whole square is equal to 4mn. यहाँ से आप वैल्यू पुट कर लो 3, 4, 5 से, तो n प्लस m की वैल्यू क्या थी, l स्क्वायर प्लस q, तो l स्क्वायर प्लस q का होल स्क्वायर माइनस में n माइनस m की वैल्यू r बाय l, r स्क्वायर बाय l स्क्वायर and 4s. Simplifying, this is l to the power 4 plus 2l square q plus q square minus r square by l square equal to 4s, means l to the power 6 2ql 4 plus q square minus 4s into l square minus r square equal to 0, which is a cubic equation in l square. देखो, क्योंकि सारी जगह पे l स्क्वायर की टर्म्स है, l की टर्म या l5 की टर्म, l क्यूब की टर्म कहीं नहीं है, तो इसलिए ये क्यूबिक इक्वेशन हो गई l स्क्वायर में. तो इसको हमें सोल्व करना है ट्रायल मेथड से. मींस कैसे सोल्व करते हैं इसको, l स्क्वायर की वैल्यू 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इस तरीके से हम पुट करके देखते हैं, और क्या वैल्यू आ रही है जो इसको सेटिस्फाई करेगी वहां से आपके पास l की वैल्यू आ जाएगी. और फिर l की वैल्यू पुट करने के बाद हम ये जो इक्वेशंस आपकी थी ना 3 और 4, यहाँ से हमारे पास n और m की वैल्यू निकल जाएगी. और जब सब वैल्यूज निकल गई तो दो क्वाड्रेटिक फैक्टर आपके पास बन जाएंगे, ये वाले एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम एंड एक्स स्क्वायर माइनस एल एक्स प्लस एन, और उनको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं. सो दिस इज द मेथड solving a biquadratic equation. To solve biquadratic equation, a naught x to the power 4 plus 4a1 x cube plus 6a square x square plus 4a cube x plus a4 equal to 0, by Descartes method, first we transform this equation into one in which the second term is missing and the coefficient of the leading term is unity, by putting z equal to a naught x plus a1 in the given equation. Then this equation will be transformed into the equation z to the power 4 plus 6hz square plus 4gz plus a naught square into I minus 3h square equal to 0. Now this is a equation in which second term is missing, and so this can be solved by using Descartes method as we have discussed in the previous article. Now we discuss some examples. Example 1, apply Descartes method to solve the equation x to the power 4 minus 3x square minus 42x minus 40 equal to 0. Here second term is already missing. So we write this equation x to the power 4 minus 3x square minus 42x minus 40 equal to x square plus px plus q इंटू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू डैश. ध्यान दो, यहाँ पे प्लस पी लेना है तो यहाँ पे माइनस पी लेना है. वो किस लिए लेना है, क्योंकि क्यूब की टर्म मिसिंग है, इसलिए. आप इसमें भी जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्यूब की टर्म नहीं आएगी. तो अब सारी टर्म्स को पहले मल्टीप्लाई करो, उसके बाद कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करो. तो x की लाइक पावर के कोएफिशिएंट्स को जब कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इस साइड से आपके पास आएगा q प्लस क्यू डैश माइनस पी स्क्वायर, और इस साइड से आ गया माइनस 3. सो क्यू डैश प्लस क्यू की वैल्यू हो गई पी स्क्वायर माइनस 3. इसी तरह से जब x का कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे तो वो आएगा क्यू डैश माइनस क्यू इंटू पी, और यहाँ से आएगा माइनस 42. सो क्यू डैश माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस 42 बाय
p and constant term is equal to q dash is minus 40. Now to eliminate q and q dash, we use the identity q dash plus q whole square minus q dash minus q whole square is equal to 4q dash. एंड सो वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ से 3 और 4 से, तो ये आपके पास हो गया पी स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस क्यू डैश माइनस क्यू की वैल्यू माइनस 42 बाय पी होल स्क्वायर एंड इक्वल टू 4 इंटू माइनस 40. So this is p square minus 6p square plus 9 and minus 1764 by p square equal to minus 160. And therefore this is p to the power 6 minus 6p to the power 4 plus 169 p square minus 1764 equal to 0. अब ट्रायल मेथड से आपको p स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है p स्क्वायर में, और क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करने का कार्डन मेथड अगर हम यहाँ लगाएं तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हिडन एंड ट्रायल मेथड से ही निकालेंगे. तो पी स्क्वायर को पहले आप 1 स्क्वायर पुट करके देख लो, तो आपके पास 1 माइनस 6 प्लस 69 माइनस 1764 जीरो के बराबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब पी स्क्वायर जो है वो 1 स्क्वायर नहीं हो सकता. फिर पी स्क्वायर को 2 स्क्वायर मीन्स पी स्क्वायर की वैल्यू 4 पुट करके देख लो, तो वो भी सेटिस्फाई नहीं हो रही. तो फिर हम चेक करेंगे कि पी स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर मीन्स 9 पुट करने से सेटिस्फाई होती है या नहीं होती. तो ये हम जब यहाँ पे पुट करके देखेंगे तो वो सेटिस्फाई होगी. एंड देयरफॉर पी की वैल्यू आपके पास आ गई 3. आप कहोगे कि -3 क्यों नहीं ली, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली इसमें p जो है वो प्लस का भी है और माइनस का भी है, तो इसलिए अगर +3 लोगे तो भी वही बात है, -3 लोगे तो भी वही बात है, तो इसलिए हमने +3 ले ली. देयरफॉर क्यू डैश प्लस क्यू की वैल्यू क्या आ गई 6. कहाँ से? ये वाली जो आपके पास इक्वेशंस आई हुई है ना यहाँ से. तो क्यू डैश प्लस क्यू इज पी स्क्वायर 9 था ना, 9 माइनस 3 6 आ जाएगा. ठीक है, और फिर क्यू डैश माइनस क्यू क्या है -42 बाय पी, 3 से डिवाइड करोगे तो -14. अब इन दोनों को एड और सब्ट्रैक्ट करके क्यू और क्यू डैश की वैल्यू निकाल लो. क्यू की वैल्यू आ गई 10 और क्यू डैश की वैल्यू आ गई -4. इन वैल्यूज को जब आप 2 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो जो दो क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं वो आपके क्या क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0. एंड इन दोनों को आप 0 के इक्वल पुट करो और फॉर्मूला से सोल्व कर लो, तो आपके पास रूट्स आ जाएंगे -3 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 31/2 एंड x इक्वल टू 4 एंड -1. सो दिस इज द रिजल्ट. अब हम एग्जाम्पल 2, सोल्व द इक्वेशन 40x4 प्लस 42x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0. यहाँ पे आप ध्यान दो कि जो ये इक्वेशन है इसकी अगर मैं पीछे से सेकंड टर्म देखूं, मतलब x की टर्म वो मिसिंग है, इसलिए हम सबसे पहले इसमें वो इक्वेशन बनाएंगे जिसके रूट्स इस इक्वेशन के रेसिप्रोकल हों. तो हमें क्या पुट करना पड़ेगा, x को 1/y पुट करना पड़ेगा. तो x को 1/y पुट करोगे तो ये हो जाएगा 40/y4 प्लस 42/y क्यूब प्लस 3/y स्क्वायर -1 इक्वल टू 0. टेक दी एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा y टू दी पावर 4 माइनस 3y स्क्वायर माइनस 42y माइनस 40 इक्वल टू 0. ये इक्वेशन वही है जो आपने फर्स्ट इससे पहले वाले एग्जाम्पल में सोल्व की है डिस्कार्टेस मेथड से. तो आपके पास y की वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी, -3 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 31/2 4 एंड -1. तो इसका मतलब x की वैल्यूज कैसे निकालनी पड़ेंगी, 1/y करके. तो इन सबका रेसिप्रोकल, तो 2/-3 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 31 एंड 2/-3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 31 एंड 1/4 एंड -1 का रेसिप्रोकल -1. अब इनको तो रैशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि नीचे स्क्वायर रूट आया हुआ है, तो रैशनलाइज करने के लिए इसको ऊपर मल्टीप्लाई किया -3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 31 से, नीचे क्या आएगा -3 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर एंड इंटू 31. इसी तरह से इसको भी रैशनलाइज करना है. तो ये आपके पास आ गया 2 इंटू -3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 31 और नीचे आ गया 9 प्लस 31 मीन्स 40 और 2 कैंसिल होगा तो 20 आ जाएगा. तो इस तरह से आपके पास ये रूट्स आ गए इस इक्वेशन के. देन नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अप्लाई डिस्कार्टेस मेथड टू सोल्व द इक्वेशन x टू द पावर 4 माइनस 10x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 24 इक्वल टू 0.
तो इसको सोल्व करना है, इसमें कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है, दिस इज ए कंप्लीट इक्वेशन। तो इसका मतलब सबसे पहले मुझे सेकेंड टर्म को मिसिंग करना है और साथ ही लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट 1 बनाए रखना है। तो उसके लिए मीन्स वी हैव टू डिक्रीज द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन बाय h वेयर h इज गिवन बाय -a1 बाय na नोट। a1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -10, तो +10 हो गया, डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ द इक्वेशन 4 है, a नोट 1 है, तो 10/4 मीन्स 5/2। तो अब इस केस में h की वैल्यू क्योंकि मेरी फ्रैक्शन में आ रही है, तो मैं फ्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो 2 डिनोमिनेटर में आया है इससे मैं रूट्स को मल्टीप्लाई कर लूंगी। तो पहले सबसे दी हुई इक्वेशन के रूट्स को मल्टीप्लाई कर लो 2 से, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, और हमने x को y में भी चेंज कर दिया है। तो आपके पास क्या आ गया, y टू दी पावर 4 -20 y क्यूब प्लस 140, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आएगा, y स्क्वायर एंड -400 y, और ये आ गया मल्टीप्लाई करके 2 की पावर 4 16 होगा, 16 को 24 से मल्टीप्लाई करो 384, तो ये आपके पास आ जाएगा। नाउ y किसके इक्वल आ गया, 2x के, सो x किसके इक्वल आ गया, 1/2 y के। अब आपको डिक्रीज करना है इस इक्वेशन नंबर 2 के रूट्स को बाय किससे डिक्रीज करना है, फिर से निकाल लो आप, -a1 बाय na नोट, अब क्या आ जाएगा, वो 5 आ जाएगा, तो 5 से डिक्रीज करना है, तो 5 यहाँ लिखो, कोफिशिएंट यहाँ पे लिखो, 1 -20 140 -400 384। तो इस तरीके से लिखने के बाद, तो देखो 5 यहाँ पे 1 एज इट इज, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 हेयर -15 आ गया ऐड करने से, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे -75, इन दोनों को ऐड करो 65, 65 को 5 से मल्टीप्लाई करो 325, ऐड करो -75, -75 को 5 से मल्टीप्लाई करो -375, और ऐड करने से क्या आ गया 9। तो इस रिमाइंडर को यहीं छोड़ दो, फिर से इसी तरीके से डिवाइड करते चले जाओ बार बार, और रिमाइंडर जो है वो आपको पीछे से लिखने हैं। तो पीछे से लिखोगे तो आपके पास इक्वेशन, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन क्या बन गई, z की पावर 4 इंटू +0 इंटू जेड क्यूब -10 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 0 इंटू जेड एंड +9 इक्वल टू 0, मीन्स z टू दी पावर 4 -10 जेड स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे z जो है वो किसके बराबर है, y-5 के, और y किसके बराबर था, 2x के, तो z इक्वल हो गया 2x-5 के। अब इस इक्वेशन के फैक्टर बन रहे हैं, देखो इसके क्या फैक्टर बन रहे हैं, z² -1 z² -9 इक्वल टू 0, तो z की वैल्यूज +-1 और +-3 आती हैं। वो वैल्यू जो है z की वो इस इक्वेशन में पुट करोगे तो x की वैल्यूज आपके पास आ गई, 2x-5 इज इक्वल टू आ गया +-1 एंड +-3। इनको जब सोल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएंगी 3, 2, 4 एंड 1। सो दिस इज द सॉल्यूशन। लास्ट एग्जांपल देखो क्या है, सोल्व बाय द मेथड ऑफ रिजोल्यूशन into quadratic factors, x to the power 4 -2x cube -5x square plus 10x -3 इक्वल टू 0। जैसे एग्जाम्पल 3 में किया है वैसे ही पहले सेकेंड टर्म को रिमूव करना है, मीन्स h की वैल्यू आ गई -a1 बाय na नोट, तो a1 है यहाँ पे -2, तो -2 डिवाइडेड बाय डिग्री 4 इंटू 1, तो 1/2 आया। इस नीचे वाले 2 को अवॉइड करने के लिए रूट्स को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो y की पावर 4 -2 इंटू 2 y क्यूब -5 इंटू 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4, ये आ गया y की पावर 4 -4 y क्यूब -20 y स्क्वायर प्लस 80 y -48 इक्वल टू 0, वेयर y इज इक्वल टू 2x। अब आपको डिक्रीज करना है रूट्स को, इस इक्वेशन के रूट्स को बाय 1, तो 1 से डिक्रीज करना है सेकेंड टर्म को रिमूव करने के लिए, तो 1 यहाँ लिखोगे, सारे कोफिशिएंट 1 -4 -20 +80 एंड -48 यहाँ पे लिख दिए, 1 एज इट इज, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 हेयर ऐड करो -3, इसको मल्टीप्लाई करो -3 -23, फिर से मल्टीप्लाई करो -23, फिर ऐड करो 57, 57 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 57 हेयर, यहाँ 9 आ गया। इसी तरह से आप बार बार सिंथेटिक डिवीजन लगाते चले जाओ, तो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आपकी आ जाएगी z की पावर 4 +0 इंटू जेड क्यूब -26 इंटू जेड क्यूब +32 इंटू जेड एंड +9 इक्वल टू 0। अब z किसके इक्वल है, y-1 के, और y किसके इक्वल है 2x के, तो z इक्वल हो गया 2x -1 के।
अब ये वाली जो इक्वेशन आपकी आई है इसको आपने कैसे लिखना है, दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में लिखना है। पहला हुआ जेड स्क्वायर प्लस पी जेड प्लस क्यू और दूसरा होगा जेड स्क्वायर माइनस पी जेड प्लस क्यू डैश। फिर आपने इसको पूरा मल्टीप्लाई करके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। जेड क्यूब का कोएफिशिएंट यहाँ भी 0 आएगा, सेटिंग ही इस तरीके की है। जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट इस राइट साइड से आपके पास आएगा क्यू प्लस क्यू डैश माइनस पी स्क्वायर और यहाँ से आ रहा है माइनस 26। तो क्यू डैश प्लस क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 26। और x का कोएफिशिएंट आएगा पी क्यू डैश माइनस पी क्यू और यहाँ से कितना आ रहा है 32। तो क्यू डैश माइनस क्यू आ गया 32/p। फिर कांस्टेंट टर्म क्यू क्यू डैश किसके बराबर आएगी 9 के। तो अब आपने आइडेंटिटी यूज कर लेनी है, क्यू डैश प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस क्यू डैश माइनस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 क्यू क्यू डैश। तो इसकी वैल्यू आपकी क्या थी, पी स्क्वायर माइनस 26, इसकी वैल्यू क्या है 32/p होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो स्क्वायर खोल के, ये इक्वेशन आपकी बनेगी p की पावर 6 माइनस 52p4 प्लस 640p स्क्वायर माइनस 1024 इक्वल टू 0। अब इसके ट्रायल मेथड से आपको पी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं पी स्क्वायर को 1 स्क्वायर मीन्स 1 पुट करूं तो 1 माइनस 52 प्लस 640 माइनस 1024 वो तो 0 नहीं आ रहा, तो ये नहीं है। फिर हम क्या ट्राई करेंगे, 2 स्क्वायर मीन्स पी स्क्वायर को 4 पुट करूंगी मैं यहाँ पे, वो भी नहीं आ रहा। फिर 3 स्क्वायर मीन्स 9 पुट करेंगे, वो भी नहीं आ रहा। तो फिर पी स्क्वायर को मैं 4 स्क्वायर मीन्स 16 पुट करूंगी, तो उस केस में ये सेटिस्फाई हो जाएगी। आपको रफ कॉपी पे ये बाकायदा चेक करनी है, तुक्के नहीं मार देने हैं। फिर पी की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 4। अब p की वैल्यू जब 4 आ गई, उस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट करोगे तो क्यू डैश प्लस क्यू क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 26 मीन्स माइनस 10। फिर क्यू डैश माइनस क्यू क्या हो जाएगा 32/4 मीन्स 8। इन दोनों इक्वेशन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके सोल्व कर लो तो क्यू डैश की वैल्यू आ जाएगी 1 और क्यू दोनों, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, ये देखो इसको और इसमें ऐड करो तो आपके पास क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो 2 क्यू डैश कितना आ जाएगा -2। तो इसका मतलब जब हम ऐड कर रहे हैं 2 क्यू डैश आया आपके पास -2, तो क्यू डैश की वैल्यू आएगी -1। तो ये क्यू डैश की वैल्यू गलत निकली हुई है, -1 आएगी। और जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो उस केस में आपके पास आ जाएगी -18/2 मीन्स -9। ये ठीक है, लेकिन ये वैल्यू किसकी आनी है सब्ट्रैक्ट होने के बाद, ये आपके पास क्यू की आनी है। दोनों क्यू डैश की लिखी गई है ना, तो मिस प्रिंट है ये, तो आपने ठीक कर लेना है। तो अब दो क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या बन गए, जेड स्क्वायर प्लस 4z माइनस 9 और जेड स्क्वायर माइनस 4z माइनस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि ये वैल्यू -1 आ रही थी इसलिए गलत लिखी हुई है। अब इनको फॉर्मूला से सोल्व कर लो। फॉर्मूला से सोल्व करने से जेड की एक वैल्यू आ गई -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 13 और जेड की दूसरी वैल्यूज आ रही हैं 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। अब जेड 2x माइनस 1 के इक्वल था ना, तो 2x माइनस 1 इसके इक्वल पुट करो और इसके इक्वल पुट करो। यहाँ से आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो x की ये वाली वैल्यूज आपके पास आएंगी, मीन्स -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 13/2 एंड 3 प्लस माइनस square root 5/2. So this is the method of solving a biquadratic equation using Descartes method. अब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर सकते हो।